Hello everyone, good morning. Okay, so let's continue with the session. So in the last class, we have discussed about array, right? Single dimensional array, multi-dimensional array, right? We have completed. So what is array? An array is a data structure which store the sequential element of the same type, right? Array is a collection of similar data types. And the main advantage is it improve, like it is simple improve the readability of the code. So it will be very easy to maintain the code. It will be very easy to, read the multiple elements which is of same type, okay, with a single variable reference. So internally in Java, array is implemented as a object. That is the reason, whenever you are declaring array, we can use a new keyword. So basically there are two types, one dimensional, that is nothing but single dimensional, and multiple dimensional array. Or you can simple call it as 2D array. What is the syntax for single dimension? Here we have learned two things. कि अगर आपको array को declare करना है तो दो वे से declare कर सकते हो. First using new keyword and second using literal. Right? This point we have already covered. तो अगर आपको literal से apply करना है तो direct set में बस elements को define करो. It will be added to the array. So this is the syntax for single dimensional array. Array are internally implemented as an object and that is the reason new operator we follow to construct an array. ठीक है? अब multi-dimensional array क्या होता है? जहां पे you can simple maintain the array in the form of rows and column. Okay, so that can be number of rows, number of column you are able to maintain. Create, clear everybody. And this is the syntax. Again the same way, like either new keyword से define करो और directly set में elements को define करो. अगर आप इस वे से literal वे से define करोगे तो this is the way, okay? This is consider one row, then second row, something like that. And जितने भी elements है just separated by comma, you have to maintain that elements, right? So this is what a literal way to define an array. So I have already explained this way, right? You can just observe here. This is the first row, this is the second row, and I have maintained some data. Then what is a for each loop? How we can apply for each loop for multi-dimensional array as well as single dimensional array. This point is written here, okay? So in this way, you just need to remember that whenever same type of elements, if you want to keep, if you want to store, then we have a very beautiful concept in data structure that is called array. Now guys, today we are going to start with very interesting topic, that is string class in Java, which is very important topic. Why? Because in software testing, most of the time, what is our role? Yeah, in software testing, we are here to test the software application. So every time we need to test that, okay, fine, whether any particular, let's say the particular functionality is working or not, maybe UI part is working or not, right? Whether you are getting correct title or not, whether you are getting current URL or not properly, right? So we do software testing every time. And at that time, let me tell you, for exact validation or just to understand what is expected and what is actual result and what is, if there is any kind of difference available, then guys, string class you can follow in that case. Okay. So because string is a, I can say, predefined class in Java. Okay. We generally use to use this particular string class to declare only the variable. कि चलो मुझे अगर example multiple characters को maintain करना है, just a minute everyone, just a minute, just okay. So string is a predefined class in Java, and yes, string class have variety of methods, guys. Those method you can use to validate a certain state of the application. Okay.
So today let's understand what is a string class, how many different methods are available, and some basics about string also. Okay, why we use string always as a data type, right? Generally we use as a data type, but in Java it is implemented as a class. So what is string? I can say string is a class which is belongs to java.lang package. This is a package. String class has many inbuilt method, right? And which will help you to perform operations on a string. So obviously methods say, and these method will help you to perform any operation on particular strings only, correct? Then guys, what we can do, जैसे example, two strings को compare करना है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में और कोई पैटर्न में, जैसे अपर केस लोअर केस पैटर्न में कन्वर्ट करना है, राइट? स्ट्रिंग को, कंप्लीट स्ट्रिंग को इफ यू वांट टू स्प्लिट इन मल्टीपल पार्ट्स, वी आर एबल टू डू दैट. प्लस अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना है, मर्ज करना है दो स्ट्रिंग को एक साथ, तो भी आप कर सकते हो, राइट? तो how many methods are there, let's understand that. So string, it is a class, and yes, object class, it is a super class in Java. So every predefined class, every user defined class, it is a child of object class. Okay, so here the string class is available. Now these are the methods that we are going to study. So we have to understand what is start with and end with method, equals, equal, ignore case method, split method, trim, character add, and concat. Few methods already we have covered, but still let me explain now with the actual concept that is called string. So very first, okay, let's understand few more basics. So as I told you कि string एक simple class है, so whenever you declare string, okay, there are two ways to declare a string. One more point, there are two ways to declare a string. Usually Java recommends you to follow the literal way. So there is one way using literal, and second way using again new keyword. Okay, let me explain what is meant by using literal way. Literal मतलब direct constant value. Example, अगर आपने ऐसे लिखा string, okay, suppose I have written s1 is equal to hello. ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट, व्हाट इज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. स्ट्रिंग क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. तो whenever it is collection of character, internally it is represented like this array, because collection of character we can maintain in the form of array only. So this is s1 array, okay, and s1 array के पास क्या है? तो ये देखो सिंगल सिंगल कलेक्शन है, राइट? l l again o. This is a collection of character. Every character, obviously array stores every element at a specific index location na, and index value start with 0. तो ये है 0 1, this is 2, this is 3, and this is 4. This is a internal representation of a string. So here, okay, पहला point, this is the internal representation. Second, if I ask you what is a string here, तो string का मतलब है class. What is s1 here? S1 is nothing but what? It is a reference variable, guys. Please remember this point. Class के साथ जो भी variable define करोगे, that is a reference variable. And right hand side पे जो भी है, जैसे कि यहाँ पे है hello. This is actually we call object. So how the literal object represent inside a JVM memory? It is very, very important topic. Now, always remember in JVM, object creates where inside a heap area of the JVM, correct ना? तो JVM में जब आप ऐसे literal way से object को create करोगे, मतलब string class में जब literal way follow करोगे, again for a literal inside a JVM we have a separate memory area. Okay, मतलब देखो, consider this is your JVM memory. ठीक है, this is only heap section of the JVM, and here objects get created. But whenever you are creating any literal way string, in that case you will have one more area. This is called string constant pool. SCP का मतलब है string constant pool. जितने भी constant variable आप define करोगे, मतलब objects को define करोगे, every object will get a memory inside a SCP. Are you understanding? तो literal way से अगर आपने object को create किया, मतलब string को declare किया, तो where the memory will be created internally inside a JVM? It is inside a SCP, string constant pool area. And let me tell you, this is very special. It will only contain unique elements. Remember this point. Only unique objects it will store.
मतलब डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, राइट ना। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट pool, it is a separate memory which is available inside a JVM heap area. If whenever you declare a string using literal way, you will be able to see the objects will create where inside a SCP. क्या यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है? So this is a special thing that you need to remember. Okay, now let me explain one more thing. So what we see that whenever you create object, you know, string S1 and in this way, so memory will be created where inside a SCP. So this is a JVM now. Inside a JVM separate memory available होगा and यहाँ पे create होगा hello नाम का object and it is referred by whom? It is referred by S1. This is the concept, right? तो ये था literal way. What happen if you create object using new keyword? See, you can create object using new keyword also. तो न्यू कीवर्ड से क्या होगा देखो, एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, ओके, सपोज न्यू, ओके, एंड लेट मी राइट वन मोर टाइम स्ट्रिंग एंड हियर आई एम राइटिंग हाई. What happens if you write object, okay, if you declare your string using new keyword? So when you write in this way, there is two things happen, you know. Basically, whenever you are using new keyword, object will first create inside the heap section of the JVM. So high will create here. Plus, it will also generate one more object, okay, which is inside what? SCP. So there is one more object generated. This is again high, okay, and both high will be pointing by whom? Obviously S2. So what is happening? लिटरल वे से ऑब्जेक्ट्स को अगर क्रिएट करोगे, स्ट्रिंग को क्रिएट करोगे, तो ओनली वन टाइम ऑब्जेक्ट विल क्रिएट इनसाइड एससीपी. बट अगर आपने न्यू कीवर्ड फॉलो किया तो यू विल गेट अननेसेसरी टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, वन इनसाइड अ हीप एरिया, अनदर इनसाइड अ एससीपी एरिया ऑफ द हीप. एवरीबडी क्लियर? एंड दैट इज द रीजन जावा सेज दैट व्हाई वी रिक्वायर टू ऑब्जेक्ट. इंस्टेड ऑफ दिस ऑलवेज फॉलो लिटरल वे. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी भी इस वे से डिक्लेयर नहीं करते. जनरली स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है तो ऑलवेज वी फॉलो द लिटरल वे ओनली, बिकॉज इसका रीजन है एक ही बार आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड दैट इज इनसाइड अ एससीपी एरिया ओनली. दिस इज अगेन सेकेंड पॉइंट विच इज क्लियर. तो अब आपका S2 दो ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहा है, हाई हाई, राइट ना, एंड बोथ आर डिफरेंट. रिमेंबर दिस पॉइंट, एससीपी एरिया का ऑब्जेक्ट एंड हीप एरिया का ऑब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट. तो टुमारो सपोज मैंने ऐसे लिखा, ओके फाइन, देन इफ आई राइट स्ट्रिंग S3 is equal to new, again मैंने लिखा string hello. What will happen? अगर ऐसे लिखते हो तो क्या होगा? एक तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनसाइड ए हीप एरिया hello, right, which is pointing by whom? Which is pointing by S2. But again when it goes to SCP, SCP में अगर ऑलरेडी एक hello ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो it will never generate another hello object. It will start pointing to this object again. Are you understanding? तो बिकॉज एससीपी में हमेशा यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, इट विल नेवर कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू. तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट यू विल नेवर एबल टू सी इन एससीपी. तो रिमेंबर दिस पॉइंट. बट इज दैट मीन कि दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम? लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली. देखो, तो मैंने क्या किया है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्लेयर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, ओके. तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू क्लास, okay. For that I will be using again core Java, guys, because in core Java, okay, let me just go to the array and array भी ही एक class create करेंगे, that is a string class. तो everybody just observe, this is a string demo, ठीक है, या class है तो start with a capital string demo and let me use a main function, click on finish. Now just observe, suppose I'm writing here, ठीक है. So we are learning string class. तो मैंने पहले क्या किया देखो, मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, string s1 is equal to hello, ठीक है. So where the memory will generate? Inside a SCP, because a literal way है. And there is a one more way ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, string s2 is equal to new, and again you can write string what? Inside a constructor you are going to pass that data, so hello. But this time two objects you will get, okay, one is inside a SCP, one is inside a heap area of the JVM. तो लेट्स सी कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट अब सेम है, बिकॉज दोनों में तो हेलो ही कीवर्ड है, राइट. मैंने जो डेटा लिखा है वो हेलो है, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एज अ हेलो. सो इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पॉइंट, वेदर S1
इक्वल टू S2. ओके, रिमेंबर जब आप ऑपरेटर को अप्लाई करते हो तो ऑपरेटर ओनली मैच द आईडी. अगर ऑब्जेक्ट दोनों भी सेम है तो जेवीएम क्या करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक आईडी असाइन करेगा. इफ द आईडीज आर सेम देन ओनली यू विल एबल टू सी द ट्रू. ओके, आंसर. अब इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे डिफरेंट थे. एक ऑब्जेक्ट है एससीपी में, एक ऑब्जेक्ट है हीप एरिया ऑफ द जेवीएम एंड एससीपी बोथ. So this time if you try to execute it, see what is the result. You are getting false result. Let me show you in this way. Can you see everybody? False आया ना? See, even though you have created hello hello, but what is happening here internally? Internally कौन सा ऑब्जेक्ट किसके साथ कंपेयर हो रहा है? See, this object is comparing with this object. Remember this point. तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग लोकेशन पे है तो both are not equal. पहला पॉइंट क्लियर. Literal way and new keyword way, declaration point, it is clear to everybody. Just write your answers in chat box or unmute yourself and answer. Tell me. This is an internal thing, okay? Yes, so sometimes in interview people will ask you in this way. तो क्या दोनों अभी same है? तो no, both are not same. Okay? Because एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एससीपी एरिया में, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एससीपी में, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप एरिया प्लस एससीपी. इवन तो बोथ ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट सेम रहेगा. ठीक है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ व्हाट एल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट अ स्ट्रिंग. इन जावा स्ट्रिंग इट इज अ इम्यूटेबल क्लास. व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल क्लास. इम्यूटेबल क्लास का मतलब होता है एक बार अगर आपने स्ट्रिंग के कंटेंट को डिक्लेयर किया, ओके, यू कांट चेंज द वैल्यू. ओके, एससीपी का मतलब है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. जेवीएम के अंदर सी इनसाइड ए जेवीएम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो अगर आपने लिटरल वे से क्रिएट किया है तो एक और सेपरेट एरिया अवेलेबल होगा इन द जेवीएम. ओके, दिस इज कॉल्ड एससीपी, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. ये किसके लिए है? ओनली फॉर अ स्ट्रिंग. अगर आप स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग लिटरल वे से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा. फाइन. नाउ इन जावा स्ट्रिंग इट इज अ इम्यूटेबल क्लास. मीन्स व्हाट, देखो जैसे कि मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू हेलो. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू इमीडिएटली यू विल गेट वन ऑब्जेक्ट हियर. ओके, एक हेलो नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा एंड इट विल बी रेफर्ड बाय s1. करेक्ट. सपोज मैंने एक और स्टेटमेंट डिफाइन किया. आई एम राइटिंग स्ट्रिंग लेट्स से s2 हेलो. व्हाट विल हैपन? टेल मी. क्या एक और बार हेलो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनसाइड एससीपी? नो ना, because duplication is not allowed. So that is the reason again you are able to see that hello is already there. तो same object को एक और variable है जो point कर रहा है, that is s2. Yes, but suppose if I have written something like this, s1 is equal to s1 plus hi, what will happen this time? अब s1 में तो चेंज किया तो इज दैट मीन कि s1 तो पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन में, इस हेलो को, तो क्या यहीं पे अपडेट होगा? नो. whenever you are making change in the particular object, now this time what is happening, we are merging s1 plus hi, मतलब जो previous hello था हमने बस उसमें hi को ऐड किया. तो internally you will able to see one more object hello hi, and who is going to point this time? तो s1 का point यहाँ पे remove होगा and then again s1 start pointing to this new object, and that is the reason string is immutable class. That means एक बार आपने value define किया, you can't change the value. If you try to update that value, you will get another object. Everybody clear? अगर ये क्वेश्चन होगा explain how string is immutable class, just ये example से explain करो. अगर s1 hello create किया, एक object create होगा, s2 hello create किया, दूसरा भी object उसी को point out करेगा because same object, right? But if you make change in that object, it will never make a change directly at that position. वो क्या करेगा, मेमोरी में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एंड फिर उसको s1 का प्रीवियस पॉइंट रिमूव होगा, द प्रीवियस रेफरेंस, and s1 will start pointing to this new object, and that is the reason string it is a immutable class. Everybody clear? ये शुभम, tell me. मैम हाँ, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हेलो वाला तो उसने तो ऑलरेडी स्पेस ले लिए है ना, फिर वो तो अनयूज ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या होगा फिर? नो नो नो, अनयूज ऑब्जेक्ट नहीं. जनरली क्या होता है, स्टिल इट इज पॉइंटिंग बाय s2. कंसिडर करो कि सपोज जेवीएम, अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट, ठीक है, देखो व्हाट हैपेंस
कि JVM में ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है, लाइक क्लास एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय JVM. Now let's talk about a heap area because every objects create inside a heap area only, correct? तो heap area में जैसे कि ये SCP है, it is only for string. And suppose बाकी भी कुछ objects यहाँ पे available है, जैसे high object available है, suppose कोई दूसरा object available है, right? So many objects we are able to generate here. So what is happening this time? अगर कोई object है जिसको कोई भी reference नहीं है, जैसे कि पहले मैंने hello को create किया था, जो point कर रहा था S1 से, ठीक है? अब इसमें अपडेट किया तो ओके फाइन, ये एक टॉपिक समझा कि हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिलेगा एंड S1 क्या करेगा, इट विल रिमूव द रेफरेंस फ्रॉम हियर एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट. तो अब ये जो रेफरेंस यहां से रिमूव हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट आई कैन से नॉट अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट. ओके, ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ये कोई भी रेफर नहीं कर रहा है ना, तो दिस अननेसेसरी ऑब्जेक्ट विच इज नॉट यूज और नो मोर यूज इन दिस पर्टिकुलर मे बी प्रोग्राम, देन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का क्या होगा, ये मेमोरी का क्या होगा. So here the concept of garbage collector happen. Okay, garbage collector. You know, internally JVM will take care of all the memory management. तो JVM क्या करेगा, the garbage collector it will initialize. तो garbage collector का काम क्या होगा, जो भी unnecessary objects है आपके JVM में, maybe which is not pointing or which is not used by any other program. So this unnecessary objects को remove करने का काम किसका होगा, it is internally happen by the garbage collector. इसके अंदर एक मेथड होती है गाइस जिसको हम बोल सकते हो finalize method. It will initialize the finalize method. Finalize method पहले objects को clear करेगा, okay? Clear the objects, the memory, and then remove करने का काम कौन करेगा, it will be removed by garbage collector. That's it. तो अगर ये क्वेश्चन होगा कि unnecessary objects का क्या होगा, तो डोंट वरी, unnecessary object जो कि required नहीं है, जो use नहीं है, maybe not reference object or any kind of null object, those objects will get automatically removed by the JVM with the help of garbage collector. Point is clear? Yes, ma'am. This is the मैम concept. SCP के लिए स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन होती है कि लाइक स्टैटिक मेमोरी और वी कैन यूज रैंडम. No. SCP it is already available in heap area. तो heap area में जितने भी objects बस आप ये बस string के लिए है, तो not for other object. Whenever you create any class and class object अगर declare करोगे, तो you will be able to see here only inside a heap, right? But SCP is only for a string. ये बस string class के लिए है, तो जितने भी object string में define करोगे, that you can maintain here. तो randomly we can maintain the objects here. There is no such a kind of concept कि हाँ static होगा तो कहाँ पे या static नहीं होगा तो क्या कहाँ पे, right? तो usually what we have seen कि अगर static area आप लोग create करोगे तो static के लिए Java में separate area available है. Suppose tomorrow I have created static string and the C name, right? तो वो जो college name create होगा वो कहाँ पे create होगा? Obviously that is again a literal way. So we are able to maintain in the which area? Meta space. आप उसको मेटा स्पेस, बिकॉज स्टैटिक कीवर्ड इज डिफरेंट कीवर्ड. ओके, स्टैटिक से डिक्लेयर करोगे तो मेमोरी विल बी एलोकेटेड हियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी यहाँ पे क्रिएट होगा. लिटरल वे से नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स अगर आपके रहेंगे तो आप रैंडमली यहाँ पे इसको ये सिंपल डिफाइन कर सकते हो. तो स्पेस इन एससीपी, व्हाट इज मीन बाय स्पेस इन एससीपी? अच्छा, इंटरनल means how many objects do you have any limit to make object? No, actually if there is any limit also there na, so again it is depend on your computer system space, because जितना आपके पास मेमोरी होगा उसके अकॉर्डिंग JVM will occupy some memory. Okay, अब JVM के लिए कितना ऑक्यूपाई हो सकता है स्टोरेज, दैट वी हैव टू चेक, बिकॉज JVM का स्टोरेज कितना है उतना वो मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे करेगा. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी देयर, डोंट वरी कि मेमोरी इंटरनली कैसे और कितना ऑक्यूपाई होगा, बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी पे ही JVM का मेमोरी डिपेंड होता है. जितने आपके सिस्टम का मेमोरी है तो एवरीवन हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी डिफरेंट मेमोरीज हो सकते हैं, तो उतना ही मेमोरी JVM क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा. फाइन. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए आर्किटेक्चर में आपका कोई भी काम नहीं है. बट व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट, बिकॉज यू शुड नो कि इंटरनली मेमोरी कहाँ पे किस एरिया में जनरेट होगा. तो कितना ऑक्यूपाई करेगा ये डिपेंड होगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के सिंपल मेमोरी के ऊपर. ओके फाइन. सो दिस इज द मेन टॉपिक. तो मेन हमारा कंसेप्ट था स्ट्रिंग क्लास. इट इज अ इम्यूटेबल क्लास, राइट? लेट मी राइट हियर द पॉइंट. String is
इम्यूटेबल क्लास, जैसे कि एक बार डिक्लेयर करोगे वैल्यू वो चेंज नहीं होगा। हाउ वी कैन से दैट, लेट्स सी। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने S1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। लेट मी राइट वन मोर। सपोज आई एम राइटिंग S2, ठीक है। S2 इज इक्वल टू व्हाट, हेलो। नाउ दिस टाइम टेल मी, इज दिस S2? ओके, S2 इज ऑलरेडी देयर। लेट मी राइट S3। अभी अगर मैंने कंपेयर किया कि क्या S1 इट इज इक्वल टू S3, व्हाट इज द रिजल्ट, टेल मी। दोनों भी ऑब्जेक्ट्स लिटरल वे से है। लिटरल वे से डिफाइन करोगे तो मेमोरी कहाँ पे जनरेट होगा, टेल मी। अब कंसेप्ट क्या है, इनसाइड एससीपी यू विल बी एबल टू सी हेलो, है ना। एंड हेलो को पहले सिंपल पॉइंट आउट किया है S1 ने, अब पॉइंट आउट किया है S2 ने, तो बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। सो इन दिस केस दैट मीन्स व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग क्या S1 S3 सेम है, तो ऑब्वियसली आंसर शुड बी व्हाट, ट्रू। रिमेंबर बोथ आर सेम, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट एंड आपका न्यू कीवर्ड का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड द लिटरल ऑब्जेक्ट बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे इसीलिए आपको आंसर मिला था फॉल्स रिजल्ट, है ना। लेट्स सी, क्या दोनों भी सेम है दिस टाइम, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड S3 which is again literal way. S3 is a literal way object, and now you can see the result. Both are true. So now if I'm making some change, example मैंने लिखा S1 is equal to S1 plus, I'm trying to update something, right? तो मैंने लिखा hi. So this time S1 के पास कौन सा डेटा है, now the S1 is something like this, hello hi, correct। तो अब इस केस में ऑब्वियसली अगर आपने ट्राई किया, सपोज कि क्या S1 is equal to S3, नाउ टेल मी। अब ये S3 है जिसके पास हेलो है, एंड S1 के पास क्या है, हेलो हाय है। बोथ आर सेम, नो बोथ आर नॉट सेम। अगेन यू विल एबल टू सी व्हाट, फॉल्स रिजल्ट, एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट एबल टू चेंज द वैल्यू। वंस यू डिफाइन एनी वैल्यू आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, बिकॉज अब S1 ने क्या किया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मेमोरी में। तो जैसे आपने S1 में अपडेट किया, इसने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हेलो हाय, and now the previous reference will be removed and it will pointing to this new reference object. Everybody clear? And that is the reason string is always considered to be a immutable class. Remember this point, which is very very important. ठीक है, तो जावा में जो string class है, it is completely immutable. Now let's talk about the methods. How many methods are there and how we can apply it? So now if you observe, I have S1. So let me print this S1 first, and then on S1 I just want to capture a length of that S1. मुझे उसका complete size, कितने number of characters available है, तो वो मुझे capture करना है। तो we have a very beautiful method that is called length method. देखो array में array का size calculate करने के लिए also we have a length, but that is not a method. array में variable है, यहाँ पे method है। variable method में क्या difference है, variable you will say in this way, only variable, method you will say like in this way. Are you understanding? तो array में use होता है length, variable, then लेकिन string में क्या use होता है, complete size calculate करने के लिए length नाम का method. Do not confuse. Sometimes people might ask you difference between length variable and length method. तो length variable used in array and length method used in string class. Remember this point. तो how to apply? तो स्ट्रिंग में S1, S2, S3 जो भी मैंने क्रिएट किया है, ऑल दिस आर रेफरेंस वेरिएबल ना। तो कोई मेथड को अगर कॉल करना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दैट रेफरेंस वेरिएबल, अप्लाई डॉट ऑपरेटर एंड सी these are the n number of methods that you can try on string class. So many things are there, okay? तो अगर मैंने ट्राई किया, ओके फाइन, अब मुझे लेंथ कैलकुलेट करना है, तो यू कैन सी समवेयर हियर you are able to see that method. See length method, it return a length of this string, okay? एंड लेंथ में सब कुछ कवर होगा गाइस, कोई भी कैरेक्टर स्पेस भी अगर होगा तो वो भी कवर होगा। तो इफ आई अप्लाई लेंथ तो इट विल रिटर्न मी इंटीजर वैल्यू। आइदर इसको डिक्लेयर करो और डायरेक्टली सिस आउट स्टेटमेंट में प्रिंट करो, बोथ आर करेक्ट, है ना। तो लेट मी राइट इन दिस वे, सपोज आई एम राइटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, दिस इज द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, राइट। एंड हियर आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्कैटिनेट दिस स्ट्रिंग एंड द आउटपुट। Let's see what is the result है। अब जो hello hi है उसका टोटल लेंथ कितना है, let's observe. This is a string hello hi and देखो 1 2 3 4 5 6 and 7, got it। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 7, तो 7 कैरेक्टर्स अवेलेबल है आपके स्ट्रिंग में।
Everybody clear? तो length is a method which will help you to calculate length of that particular string. Then हमने एक और method already देखा था, character at method. If you pass character at and if you pass index, okay, it will return you the character which is available at that index. Example, अगर आपने लिखा find S1, you know, let me write character at 4. Let me just calculate what is a character at 4. So I will be writing S1 dot what? Obviously character at method, and कौन सा index pass करना होगा? 4th number का index. So now you guys tell me what it will return to me. अगर इसमें लिखा है hello hi, तो 4th number पे index पे क्या होगा? देखो 0 index पे start होगा H, 1 2 3 4. What you will get? O. O. Expected is you should get O. Let's see. Yes, so we are able to see that 4th character value is what? O. Yes. Now suppose I want to convert string. Okay, तो convert करने के लिए we have two methods. Okay, conversion करने के लिए we have two methods. First one is you can convert to uppercase. Complete string को आप uppercase में convert कर सकते हो, or you can convert a string into lower case also. So we have very simple method to lower case method. ठीक है, ये भी मेथड आपके पास है. अप्लाई कैसे करोगे? जस्ट ऑब्जर्व. अगेन यू कैन राइट, ओके फाइन, जस्ट राइट दिस टाइम S1 डॉट टू अपर केस. देखो टू अपर केस, ये आपको कंप्लीट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करके देगा. एंड इफ यू राइट, ओके वन मोर टाइम, S1 डॉट टू लोअर केस, तो ये आपको देगा लोअर केस का कन्वर्जन. देखो इफ यू अगेन रन इट, so you will able to see hello hi, complete character in uppercase and every character in lowercase. So in this way we are able to perform conversion. Now let me declare a string. Okay, everyone observe. Suppose I am writing string info string, and what is this info? So I will say Selenium WebDriver is web UI. Okay, web UI automation testing tool. ठीक है, मैंने string लिखा. Okay, and then what I'm going to do, I will be copying the same string, and again I will declare one more. So here, okay, same, and let me write something like this. Suppose this is my actual string and this is my expected string. Okay, done. Yes, अभी के लिए दोनों string equal है, right now, but still if you want to check the equality, then we have two methods, right? First method that you can try, equals method. What is equals method, guys? Usually equals method will check the string with exact match. Okay, दोनों string में सब कुछ exactly same होना चाहिए, right? And this string or this particular method is case sensitive. Everybody remember this point. ये जो equals method है, it is always case sensitive method, guys. तो अगर आपने इक्वल्स मेथड को अप्लाई किया, थोड़ा सा भी यहाँ पे दोनों में चेंज हुआ, तो इट विल डेफिनेटली रिटर्न यू द बूलियन रिजल्ट. इन दैट केस फॉल्स विल बी द आंसर. अभी के केस में अगर मैंने अप्लाई किया, लेट्स से यूजिंग इक्वल्स, लेट मी राइट यूजिंग इक्वल्स मेथड, व्हाट इज द रिजल्ट? सी अगर मैंने लिखा act डॉट एक्सपेक्टेड, ओके सॉरी act डॉट मेथड इक्वल्स मेथड, एंड देन लिखो एक्सपेक्टेड. What is the result? So I'm just comparing that whether my actual string is equals with expected string. अभी के केस में दोनों string तो same है, तो obviously it should return you boolean result ना. देखो equals method आपको return करेगा boolean. Just go to the equals, whatever the documentations are there, just check here. What is the return type of equals? It is a boolean. Okay, तो ये आपको boolean result देगा. This time obviously you will able to see true. Why? Because strings are equal. So let's see. If I execute it, what is the result? Yes, using equals, it is true. Fine. But suppose मैंने अब क्या किया, T में बस लिखा 2, जैसे कि T कैपिटल. Okay, previously T was small, अब मैंने लिखा है T कैपिटल. अब क्या होगा? Whenever I'm providing T as a capital T, see the result. One more time, run as Java application. See, immediately I'm getting equals is false. See, the contents was same ना, but still equals में result क्या मिला आपको? false मिला. अब instead of this, if I apply one more method which is called equals ignore case.
इक्वल्स इग्नोर केस मेथड का काम क्या है, ये भी इक्वालिटी टेस्ट करेगा एंड इट इज नॉट केस सेंसिटिव। रिमेंबर, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर कंटेंट सेम है, राइट, एंड अगर आपने अपर केस लोअर केस में डिक्लेयर किया है, इट डजंट मैटर फॉर दिस मेथड। तो विदाउट एनी case problem, if you want to just look for a contains, or ignoring case if you want to look for a contains, you can use this equals ignore case method. So let me show you now. Equals ignore case method, how we can apply. So you have to just write one more time act dot which method, equals ignore case method, where you can pass another string, है ना, एंड ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, देखो, दिस विल आल्सो रिटर्न बूलियन डेटा। ओके, तो लेट मी टेक दिस। तो आई एम जस्ट कंपेयरिंग वेदर एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल बोथ आर इक्वल। दिस टाइम इक्वल्स मेथड ने आंसर आपको दिया है फॉल्स। व्हाई? बिकॉज टी हमने लिखा है कैपिटल में। बट लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट फ्रॉम इक्वल्स इग्नोर केस मेथड। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर, सी द रिजल्ट। Previously, because of equals case sensitivity के वजह से you are able to see false, but now you can see in equal ignore case you are getting true result. So everybody clear? Equality अगर दोनों string में exact matching करना है, equality का मतलब होता है exact matching. तो exact matching करने के लिए you will be writing in this way. Okay, this method you can follow. What else we can do? So string class में वैसे तो बहुत सारे methods है, but whatever the methods I will be explaining to you, these are the very popular method. Most of the time in automation we follow these method. Okay, so do not confuse कि अरे इतने सारे हैं हम लोग इतने कर रहे हैं। No, 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 it is depends guys, ये पूरा programming है and we are not going to learn like how to develop the application. We just need to understand how we can test the application, and for testing purpose these topics are enough. Okay, so do not confuse any topic. So it's very simple. Now chalo, suppose if I want to search a specific element is available in my string or not, right? कुछ search activity करना है और कुछ find out करना है, तो इस case में we have one more beautiful method, contains. Contains method is very popular, very important, because in automation also we are going to use this contains method. तो contains का काम क्या है देखो, suppose example, now you have expected a actual string, you can consider the both, okay, and मुझे बस चेक करना है कि whether selenium is available or not in that string. Okay, तो मैं कैसे लिखूंगी देखो, suppose I will be checking, okay, check selenium is available. ठीक है, तो मैंने लिखा suppose let me write, okay, yeah, available, fine. क्या टेस्ट करना है, selenium, right? तो let me just go for this, is it available? तो कहाँ पे टेस्ट करना है, सपोज एक्चुअल स्ट्रिंग में, तो एक्चुअल स्ट्रिंग डॉट व्हाट आई कैन यूज, कंटेन्स, कंटेन्स, ओके, नॉट कॉन्कैट। लेट मी जस्ट गो वन मोर टाइम, सी कंटेन्स, यस, कंटेन्स में क्या ऑब्जेक्ट आपको सर्च करना है, तो जो भी ऑब्जेक्ट सर्च करना है गिव दैट एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉर व्हाट, सेलेनियम, राइट। अगर मेरे स्ट्रिंग में सेलेनियम होगा तो ऑफ कोर्स आपको आंसर क्या मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ अगेन बूलियन रिजल्ट। देखो अगेन कंटेंट्स मेथड विल रिटर्न यू व्हाट, बूलियन डेटा ओनली। ठीक है, तो देखो अभी सेलेनियम तो है, राइट, एक्सपेक्टेड में भी है, एक्चुअल में भी है, तो ऑब्वियसली दिस विल रिटर्न यू ट्रू। सी, इफ यू अप्लाई इट विल रिटर्न यू ट्रू, okay, because selenium is available in that string. Okay, now suppose I am testing, okay, fine, check, check for, let's say testing, okay, testing भी है, but चलो I'm looking for this, T should be capital, something like that, okay, और let me just go for some another, okay, चलो पहले ये दिखाती हूँ कि अगर कैपिटल में आपको टेस्ट करना है, अगर वो अवेलेबल नहीं है आपके स्ट्रिंग में, इट इज अवेलेबल कंटेंट वाइज, टेस्टिंग वर्ड है बट टेस्टिंग का टी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में कंटेंट्स मेथड क्या करेगा, यस ऑब्वियसली इट इज आल्सो केस सेंसिटिव। ओके, तो अगर आपने एग्जांपल अप्लाई किया कि क्या एसीटी डॉट लेट्स से कंटेन्स, ठीक है, व्हाट एवर यू आर लुकिंग दैट इज टेस्टिंग, टी शुड बी कैपिटल, ठीक है, तो आपके इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली कंटेंट वाइज टेस्टिंग वर्ड अवेलेबल है आपके स्ट्रिंग में बट टी कैपिटल नहीं है, तो देखो अभी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अगेन इट विल रिजल्ट show you result in the boolean only, that means this time it is saying false. Why false? Because ये भी मेथड आपका केस सेंसिटिव है, तो जो भी वर्ड आपको टेस्ट करना है दैट वर्ड शुड बी प्रॉपर, ठीक है, तभी आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट मिलेगा, जो भी वर्ड हो जाए, जो भी ऑब्जेक्ट आप सर्च करोगे दैट शुड बी प्रॉपर, ठीक है।
तो कंटेन्स मेथड ये भी एक पर्टिकुलर मेथड है जहां पे आप अप्लाई करोगे, इट विल चेक दैट वेदर स्ट्रिंग कंटेन्स दैट वैल्यू और दैट ऑब्जेक्ट और दैट इंफॉर्मेशन, दैट्स इट. It is also very simple. Now we have one more beautiful method, trim. Trim का काम क्या होता है? Generally it will ignore a white space. Okay, it will ignore white space. ठीक है, white space कहाँ से? I will say not in between. Okay, let's say before, okay, and after this string. मतलब स्ट्रिंग के बिफोर एंड आफ्टर अगर कोई व्हाइट स्पेस होगा तो इट विल बी इग्नोर बाय ट्रिम. ओके, तो लेट मी शो यू. सपोज आई एम राइटिंग स्ट्रिंग S4, ओके, एंड आई एम राइटिंग समथिंग, यू नो, वर्ड, लेट्स से मैंने लिखा है वेलकम, एंड वेलकम विद सम स्पेस आफ्टर एंड बिफोर. ठीक है, चलो वेलकम ऑल भी लिखती हूँ. ओके, एंड आफ्टर दैट आल्सो आई एम गिविंग सम स्पेस, and this is my string. Okay, first of all let me show you how it will simple print inside a console. तो मैंने अगर S4 को प्रिंट किया तो ये स्ट्रिंग कैसे दिखेगा? विद द स्पेस. सी, बिफोर भी स्पेस है एंड ऑल के बाद भी कोई स्पेस, राइट ना, बिकॉज मैंने स्पेस से अप्लाई किया. अगर आपको स्पेस को इग्नोर करके ओनली कंटेंट को वेरीफाई करना है और कंटेंट को प्रिंट करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? विद द हेल्प ऑफ ट्रिम फंक्शन. मतलब आपको लिखना होगा ओके फाइन S4 डॉट ट्रिम. ठीक है, देखो अभी ये ट्रिम कैसे होगा. इफ यू गो टू अगेन रन एज जावा एप्लीकेशन, सी वेलकम का बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रिंग गेट पर्टिकुलर स्पेस गेट इग्नोर, है ना. वेलकम ऑल, दिस इज नाउ प्रिंटिंग ओनली वेलकम ऑल, एंड आफ्टर वेलकम ऑल यू कैन सी देयर इज नो स्पेस एट ऑल. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट. अगर आपको बिफोर एंड आफ्टर कोई स्पेस को इग्नोर करना है तो आप ट्रिम फंक्शन को यूज करोगे, विच इज अगेन अवेलेबल फ्रॉम द स्ट्रिंग क्लास. तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. हाउ मेनी मेथड सो फार वी हैव सीन? सी दिस लेंथ मेथड, कैरेक्टर एट मेथड, कन्वर्जन के लिए टू अपर केस लोअर केस मेथड, इक्वालिटी टेस्ट करने के लिए इक्वल्स इक्वल इग्नोर केस मेथड, कंटेन्स मेथड, ट्रिम मेथड. व्हाट एल्स? वी हैव वन मोर इंटरेस्टिंग. ओके, सपोज if you want to check that whether any string start with specific prefix or end with specific prefix or suffix, आप कैसे टेस्ट करोगे? देखो, एक मेथड हम यूज करेंगे starts with. ओके, वन मोर टाइम, starts with मेथड. ठीक है, ये start with मेथड में आप prefix बस ऐड करो and you are able to use that method. ठीक है, starts with मेथड. let me apply some hyphen. एंड देन सेकेंड मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड एंड्स विथ. तो एंड्स विथ ये जो मेथड है, ये मेथड क्या काम करेगा? यहाँ पे आप सफिक्स को टेस्ट करो. ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे? देखो, नाउ यू कैन सी वी हैव अ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग. ओके, वेदर सेलेनियम इज वेब यूआई ऑटोमेशन 2, राइट. तो मुझे टेस्ट करना है कि क्या एक्चुअल मेरा जो स्ट्रिंग है, वेदर इट इज स्टार्टिंग विथ सेलेनियम वर्ड और वेदर इट इज एंडिंग विथ टूल वर्ड. तो सिंपल है, तो आप इस वे से टेस्ट करो. ओके, so string starting, okay, string starts with selenium. ठीक है, suppose I'm looking for this, तो मैं टेस्ट करूंगी इस वे से, right? Just apply here a method, just write act dot, again the method name is starts with. okay, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली without any hyphen just write W capital. You can write in this way, starts with and ends with. ठीक है, चलो, तो मुझे starts with कहाँ पे चेक करना है? What do we have to check? We have to check selenium. तो just write that particular word कि क्या हमारा string start हो रहा है selenium word से, right? Similarly हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा string start और end हो रहा है. Okay, string ends with, you know, again which word? Tool word. If you want to test that, again you can do the same. act, just use a method ends with, and जो भी word आपको search करना है या object, just write it here. So I'm looking for tool. Everybody clear? Let's see. This time obviously both are true ना? Selenium से start हो रहा है string and tool पे ही end हो रहा है. So if you execute it, it will again show you the correct result. So both are true. Fine. So start with में ऐसा नहीं है कि आप लोग complete string को check करोगे. There can be possibility कि अगर आपने simple कुछ suffix को test किया है, जैसे कि cell से start होना चाहिए, ठीक है, end होना चाहिए OL पे, तो that is also okay. ठीक है, that is also okay. See the result.
again it will say and it will check that yes you are able to see the true result. Why? Because obviously ये end तो हो रहा है ना OL पे and start भी हो रहा है ना SC से, तो it is correct. इनफैक्ट आपने सिंगल कैरेक्टर भी दिया तो भी ये करेक्ट होगा. देखो L एंड S मैंने अगर दिया तो भी ये आंसर आपको ट्रू ही देगा. हाँ, सपोज यू आर राइटिंग समथिंग डिफरेंट. एग्जाम्पल आपने लिखा है कुछ W, एंड होना है W पे, तो ऑब्वियसली इस केस में आपको फेल्योर ही मिलेगा बिकॉज स्ट्रिंग उस लेटर से एंड नहीं होता है, राइट ना. तो इसलिए मैंने लिखा है सफिक्स एंड प्रीफिक्स. सफिक्स मतलब लास्ट वाले कैरेक्टर्स, प्रीफिक्स मतलब इनिशियल कैरेक्टर्स. एवरीबडी क्लियर? तो इन दिस वे you are able to apply start with and end with method. So yes, after that what else we can see? Okay, let's understand how we can concat two strings together. Obviously we use here you know what, generally a plus operator. Concat अगर करना है तो आप plus operator से भी कर सकते हो, right, directly. But string में अगर आपको method से concat करना है तो कैसे करोगे? देखो, suppose I'm having one string s5 is equal to, suppose I'm writing hello everyone. Okay, ठीक है, hello everyone, and after this string I have one more, suppose string s6. Okay, let me write s6 is equal to, let me write welcome to learn Selenium. Okay, Selenium automation. Okay, done. अब मुझे क्या करना है, ये दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है, ठीक है ना. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वेरी सिंपल. जस्ट गो टू s5, ओके, प्लस व्हाट, s6. यस और नो, होगा ना कॉन्कैटिनेशन. देखो, इफ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू आर एबल टू सी, हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न सेलेनियम ऑटोमेशन, राइट. ओके, टू लर्न के बीच में लेट मी गिव अ स्पेस. बट व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे इमीडिएट आ रहा है, मुझे इन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड. क्या करोगे? You are just going to add some little bit space between this, yes or no, and then आप इसमें फिर से plus operator add करो. Yes, now just observe what is the result. Okay, one more time, run as Java application and see the result. मिला, hello everyone welcome to learn Selenium automation, right. अब ये एक टेक्निक है, और there is one more, that is with the help of method. Directly लिखो s5 dot, which method? Here we have concat method. See, one more time, dot, I will say concat. See, concat with another string. कौन सा string? s6. Again same, अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो आपको कंबाइन में ही मिलेगा. इफ यू वांट सम स्पेस, सी, बिटवीन द वर्ड, तो आप थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ऐड करो बिफोर दिस, ठीक है. तो बिफोर दिस जस्ट ऐड सम स्पेस एंड देन यू कैन रन. देखो, हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न सेलेनियम ऑटोमेशन. तो कॉन्कैट करना है तो अब तक हमने प्लस ऑपरेटर देखा था, बट अगर स्ट्रिंग क्लास डायरेक्टली यूज करोगे तो आप लोग कॉन्कैट मेथड को भी यूज कर सकते हो. एवरीबडी क्लियर? तो दिस इज द कॉन्कैट मेथड दैट वी कैन फॉलो, कॉन्कैट. ओके, दिस इज द मेथड नेम. सो इन दिस वे, ओके, टी शुड बी नॉट हियर, कॉन्कैट, डन. तो इन दिस वे यू आर एबल टू मर्ज टू स्ट्रिंग्स टुगेदर. एवरीबडी, इट इज क्लियर? तो कॉन्कैट, स्टार्ट विथ, एंड विथ, ट्रिम, सर्च, that is a contains method, equality, convert, and character at and length. These methods are sufficient, okay, to understand entire automation. Fine. Yeah, now there is a one more, split. Exactly split कैसे काम करेगा देखो. Okay, यहाँ तक कोई query है? Because this is very simple topic, all the methods of string. Let me show you what is a split now. ठीक है. Generally split method में you have to pass one regular expression. क्या होता है ना कि ऑन व्हाट बेसिस यू वांट टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ तो भी पैटर्न होना इंपॉर्टेंट है. रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज लाइक अ पैटर्न मैचिंग. कोई पैटर्न को मैच करके आप लोग क्या कर सकते हो? यू कैन सिंपल स्प्लिट द स्ट्रिंग. एग्जांपल, मैं लिखती हूँ स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग टूल्स, ओके, एंड हाउ मेनी टूल्स आई हैव, जस्ट ऑब्जर्व. मेरे पास है टूल जैसे कि HP, QTP, then Selenium, okay, then TestLink, okay, then मैं लिखती हूँ JMeter, okay, then yeah, JMeter, yes, then I have suppose Jira, yes. तो so many tools are there, fine. अब मुझे ये हर एक टूल को सेपरेट आउट करना है, बिकॉज देखो, जैसे आप इसको प्रिंट करोगे, ठीक है, टूल्स, तो ये प्रिंट कैसे होगा? ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग है,
बट स्ट्रिंग इज नाउ कंटेनिंग वेरियस डेटा, है ना। देखो HP, QTP, सेलेनियम, टेस्लिंग, जेमीटर, चीरा, आपको इस वे से आ रहा है। नाउ आई जस्ट वांट टू स्प्लिट एवरी डेटा फ्रॉम माय स्ट्रिंग। कैसे करोगे? और चलो सोचो कि मुझे HP, QTP को अलग करना है इस पूरे स्ट्रिंग से, सेलेनियम को अलग करना है, कैसे करोगे? अगर कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट या वर्ड को सेपरेट आउट करना है तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई दिस स्प्लिट फंक्शन। ऑब्वियसली स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग का है तो अप्लाई करो, tools dot what, you will be writing here split. But see, inside a split bracket you just need to pass regex, मतलब regular expression. ये क्या होता है regular expression? It is like a pattern matching, मतलब कोई भी पैटर्न के बेस पे you can apply your you can simple separate out or you can perform some operation. Example, जैसे कि मुझे टेस्ट करना है कि फाइन there is a username text box and username can only accept all characters, only characters, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे? तो कैरेक्टर मतलब आपको बताना होगा कि A to Z के बिटवीन ऑल कैरेक्टर्स आर एक्सेप्टेड, और वी कैन राइट इन दिस वे ना, कैपिटल A टू कैपिटल Z, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल A टू कैपिटल Z ऑल कैरेक्टर। तो एस्ट्रिक मार्क यहाँ पे यूज होता है फॉर ऑल कैरेक्टर, राइट। तो ये क्या है? पैटर्न मैचिंग। जनरली डेवलपर्स इसको यूज करते हैं कि जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स में कोई कंडीशन है और ईमेल आईडी, तो देयर शुड बी प्रॉपर पैटर्न ना, ओनली वन टाइम @ सिंबल शुड बी देयर, डॉट ऑपरेटर दे विल चेक, राइट, .com प्रॉपर डोमेन होना चाहिए, प्लस डॉट, हाउ मेनी टाइम यू आर एबल टू अप्लाई डॉट इन द ईमेल। सो ये पैटर्न मैचिंग कहाँ पे होगा? इट इज परफॉर्म बाय डेवलपर। बट जैसे ये पैटर्न मैचिंग होता है गाइस, सेम पैटर्न मैचिंग वी आल्सो कैन फॉलो, ओके, इन सॉफ्टवेयर टेस्ट। तो फॉर दैट रीजन यू हैव दिस स्प्लिट फंक्शन। आपको बस अप्लाई करना है स्प्लिट। स्प्लिट के अंदर किस बेस पे आपको स्प्लिट करना है, दैट यू कैन सिंपल डिफाइन। तो स्प्लिट बेस्ड ऑन व्हाट? नाउ टेल मी, कौन से बेस पे मुझे स्प्लिट करना है? यहाँ पे क्या होना चाहिए पैटर्न? मुझे सेपरेट आउट करना है सपोज एवरी वर्ड, तो आई कैन अप्लाई हियर कॉमा। कैन यू सी द पैटर्न इज अवेलेबल? कॉमा है ना वहां पे सेपरेट आउट करने के लिए, तो यू कैन ऐड कॉमा। अब देखो सपोज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया एक स्पेसिफिक इंडेक्स, मतलब स्ट्रिंग है तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, एंड हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स लोकेशन है। बट मैंने कॉमा के बेस पे सेपरेट आउट करके वॉट एवर द फर्स्ट वर्ड विल बी देयर, आई जस्ट वॉन्ट दैट वेरिएबल। अब क्या करेंगे? देखो दिस टाइम इफ यू ऑब्जर्व, ये जो स्प्लिट है ये आपको रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ऑफ एरे। तो लेट मी जस्ट डिफाइन हियर स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग ऑफ लेट्स से एरे, and I will be writing here, okay. And this time why it is not happening, just a minute, let me apply in this way. Yeah, it is true. Suppose I just want the first element, so can I apply in this way the first 0th element? Yeah, this time it is correct. See, basically complete string को split करना है तो आप array, इसमें array को डिक्लेयर करो एंड आप स्प्लिट करो। अब मुझे बस सिंगल वैल्यू को स्प्लिट करना है, तो यू कैन ऐड हियर इंडेक्स सी। सी what the value you are able to see at array, okay। जब array को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, मतलब ARR ये वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? just a minute, see this, can you see one word मिला everybody? You can split in this way also ना, 0th position, first position, second position, yes or no? बोलो, करेक्ट है। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, सपोज टुमारो टूल्स डॉट स्प्लिट, ठीक है। कौन सा पैटर्न? यस, आई जस्ट वांट टू स्प्लिट ऑन अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इज कॉमा, एंड सपोज आई जस्ट वांट टू स्प्लिट सो 0 1 2 3 4, ओके, 4th नंबर का एलिमेंट। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये टीटी में मुझे क्या रिटर्न करेगा? टेल मी विच एलिमेंट? जीरा। सी दिस, कैन यू सी द 4th एलिमेंट इज 0। अगर ये 0th लोकेशन पे है तो इसका लोकेशन होगा 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। एवरीबडी क्लियर? सिंगल सिंगल एलिमेंट को स्प्लिट करना है तो दिस इज द वे यू आर एबल टू राइट अ लॉजिक। जस्ट अ मिनट, यहां तक सबको क्लियर है? बट मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है तो वन मोर टाइम यू कैन अप्लाई टूल्स डॉट व्हाट, अगेन स्प्लिट, ओके, जस्ट राइट हियर रेगुलर एक्सप्रेशन। अब अगर विदाउट इंडेक्स अप्लाई करोगे तो ये रिटर्न करेगा आपको एरे, कंप्लीट एरे। तो यू हैव टू डिक्लेयर इन दिस वे स्ट्रिंग एंड दिस इज डेटा,
एंड देन यू हैव टू अगेन इटरेट द एरे। आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते ना, तो गो फॉर इटरेशन। तो आई कैन अप्लाई हियर फॉर ईच लूप, स्ट्रिंग ऑफ आई विल से डेटा एंड देन स्ट्रिंग को प्रिंट करो, मतलब वो ith वैल्यू को प्रिंट करो। नाउ यू कैन सी व्हाट इज द रिजल्ट। तो इनिशियली you will able to see the first result. See, let me apply some separator, so we will understand the result of this particular code. Now just observe. तो सिंगल एलिमेंट को ऑटोमेट और सिंपल सेपरेट आउट करना है तो ऐसे करोगे, अदरवाइज कंप्लीट लिस्ट को इस वे से करो। एवरीबडी क्लियर? देखो ये सिंगल है एंड ये है आपका पूरा लिस्ट। तो इस दैट मीन कि एवरी टाइम ये होगा नहीं, पैटर्न कुछ भी हो सकता है गाइस। ओके, दिस इज नॉट कंपल्सरी। तो मे बी यहाँ पे कुछ कॉमा नहीं है इस बार कुछ स्पेस है। अब इस केस में क्या करोगे? अब इस केस में यू हैव टू अप्लाई प्रॉपर पैटर्न। देखो अब मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, आई हैव चेंज हियर। व्हाट इज द रिजल्ट? जस्ट ऑब्जर्व। इफ द पैटर्न इज नॉट मैच एंड इफ इट इज मैच, तो बिफोर एस्ट्रिक देखो आपका पैटर्न ही मैच नहीं हुआ है ना, तो आपको आंसर क्या आ रहा है? array index out of bound exception now 4. Okay, I am getting here array index out of bound for 4. ठीक है, so on which line I am getting? On line number 17. Okay, why it is so? Yeah, because pattern match नहीं हो रहा है। 0th index पे कुछ वैल्यू मिला, देखो it is printing the complete data। देखो it is printing again complete data, है ना, which is completely wrong। तो यहाँ पे प्रॉपर अगर पैटर्न आप देते हो कि अब इस आपके स्ट्रिंग में स्पेस है, तो जस्ट गिव स्पेस, यू विल एबल टू सी द रिजल्ट। कैन यू सी? अब आ रहा है मुझे 4th इंडेक्स पे जीरा है, HP QTP है, 1st इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे, एंड देन ये पूरा आपका डेटा। तो एवरीबडी क्लियर हाउ यू कैन स्प्लिट द एलिमेंट? कंप्लीट स्ट्रिंग को मल्टीपल वर्ड्स में या मल्टीपल डेटा में आप कन्वर्ट कैसे करोगे? आइदर आप पोजीशन वाइज कर सकते हो और आप कंप्लीट स्ट्रिंग को भी सेपरेट आउट कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इट इज वेरी सिंपल गाइस। यहाँ तक सबको क्लियर है? What is the string class and how many different methods are there? Now let me explain one more interview question. People might ask you, okay fine, I just want to convert this string. Okay, suppose I have written here some string. Let me write string, and this is a, what we can say, it is a message. Suppose message नाम का एक string है, और लेट्स से PL, स्ट्रिंग PL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड मैंने लिखा है जावा। ठीक है, एंड पीपल माइट आस्क यू क्वेश्चन, ओके रिवर्स दिस स्ट्रिंग, हाउ यू कैन रिवर्स अ स्ट्रिंग, ओके, विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग क्लास? व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग क्लास? यस गाइस, इट इज पॉसिबल, बिकॉज जावा में जैसे स्ट्रिंग क्लास है वैसे और दो इंपॉर्टेंट क्लासेस अवेलेबल है, जिसको आप बोल सकते हो स्ट्रिंग बिल्डर। लेट मी राइट, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर क्लास। ओके, तो समटाइम्स इन इंटरव्यू पीपल माइट आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि मुझे रिवर्स ही करना है स्ट्रिंग को, बट स्ट्रिंग को यूज करके नहीं करना है, तो कैसे करोगे? तो वी हैव अनदर ऑप्शन, दैट इज दीज टू क्लासेस। These two classes, why it is important, let me tell you. String builder and string buffer दोनों भी जो क्लास है ना, वो दोनों भी क्लास म्यूटेबल है। मतलब क्या? What is a mutable means? The value if you declare here, it can be changed. Example देखो, मैंने लिखा string builder, okay? अब इसमें एक और रूल है, you can't apply literal way. You can create object only with the help of new keyword. ठीक है, तो मैंने लिखा SB is equal to new, and अगर मैंने फिर से लिखा string builder, ठीक है, string builder. Now here inside I will be just creating Java. Okay, this is my word suppose. Fine. तो गाइस इस क्लास में अगर आपको रिवर्स करना है, ये म्यूटेबल है, मतलब कैसे? देखो सपोज एग्जांपल मैंने क्या किया, SB इसमें you will able to see some methods. Okay, some ready-made methods also you have. Suppose if you want to some append information, example मुझे string information को ही append करना है, तो देखो append करके एक मेथड है, बट इसमें टाइप्स है, क्या कौन सा डेटा append करना है? मुझे append करना है string ही डेटा, तो मैं लिखूंगी append and I will be writing here a simple data that is programming. मैंने क्या ऐड किया वर्ड में? ओके, प्रोग्रामिंग, डन। मैंने बस ये टर्म ऐड किया, प्रोग्रामिंग। अब इस केस में क्या होगा,
तो एसबी में हमने अपेंड किया है, वी हैव मेक सम चेंजेस इन एसबी, तो लेट्स प्रिंट एसबी। देखो एसबी बिफोर और आफ्टर अपेंड और बिफोर अपेंड, ठीक है। अब देखो what the SB is printing, just observe here and let me apply here separator also to understand the concept. ठीक है, अब देखो ओके, सो लेट्स सी, कैन यू सी जावा एंड जावा प्रोग्रामिंग हो गया, एक ही ऑब्जेक्ट में आपने चेंज किया ना एसपी में, राइट, एंड एसपी वी आर एबल टू सी हियर नाउ जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो, राइट, द प्रीवियस एसबी एंड दिस एसबी इज आल्सो बोथ आर सिमिलर नाउ, ओके। बट नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट, वी हैव हियर डायरेक्ट मेथड। अगर आपने देखा एसबी डॉट रिवर्स, देखो रिवर्स करके डायरेक्ट मेथड है, तो एसबी डॉट रिवर्स मेथड क्या करेगा, इट विल रिटर्न यू रिवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। एग्जाम्पल मेरे पास कौन सा डेटा है, तो अब ये जावा प्रोग्रामिंग, एसबी के पास फुल वैल्यू है ना, इट इज अ म्यूटेबल क्लास गाइस। म्यूटेबल मतलब एक बार वैल्यू डिफाइन किया वो वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो। स्ट्रिंग इज कंप्लीटली इम्यूटेबल, स्ट्रिंग में आप लोग डेटा को चेंज नहीं कर सकते, वैसे इन दो क्लासेस में डेटा को चेंज आप कर सकते हो। तो व्हाट इज द ब्यूटी हियर, ये दोनों क्लास के पास एक डायरेक्ट मेथड है रिवर्स मेथड। अगर आपने लिखा ओके फाइन एसबी डॉट रिवर्स, तो एसबी में जो भी डेटा है यू आर एबल टू सी डायरेक्टली इन द रिवर्स फॉर्म। कैन यू सी दिस, हो गया क्या आपका रिवर्स, देखो पहले जी, उसके बाद एन, उसके बाद आई, उसके बाद डबल एम, है ना, ए वी ए जी, जावा का रिवर्स है ना। तो वी कैन डायरेक्टली रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, दिस इज द आंसर। अगर क्वेश्चन इस वे से होगा कि एक स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करो विदाउट स्ट्रिंग, तो विदाउट स्ट्रिंग रिवर्स करना है तो इस वे से, डायरेक्ट वे से, because in string if you apply pl dot reverse, can you see there is no direct method available to reverse a string. So sometimes in interview people might ask you, suppose take a string and I just want to reverse this string, how you are going to write the logic. तो अब हमें मैन्युअली करना पड़ेगा बिकॉज हमारे स्ट्रिंग क्लास में ये मेथड अवेलेबल नहीं है। तो रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करोगे, दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया बस कि एक और दो क्लासेस जावा में अवेलेबल है, बट समटाइम्स पीपल माइट आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर एंड बफर क्लास। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, स्ट्रिंग इज कंप्लीटली इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर बोथ आर म्यूटेबल क्लास। स्ट्रिंग क्लास में रेडीमेड मेथड से वैसे स्ट्रिंग बिल्डर बफर में भी है, बट बिल्डर बफर में जो एक्स्ट्रा मेथड है जैसे रिवर्स, वी डोंट हैव अ डायरेक्ट सपोर्ट इन स्ट्रिंग क्लास, ओके। जनरली यू नो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर एंड बिल्डर में यू नो सिंक्रोनाइजेशन अलाउड है, ओके, फास्टर वे से बिल्डर हमेशा बफर से फास्टर काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है जो आप डिफाइन कर सकते हो, राइट, एंड यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन ऑन गूगल ऑल्सो। But see, this is a very important topic, so that is the reason I know I have covered this concept कि string buffer builder and string exactly क्या है। तो ये तीनों भी predefined classes ही है। string class को you can declare with two ways, new keyword से भी declare कर सकते हो and literal से भी declare कर सकते हो। buffer builder को literal से declare नहीं कर सकते। See, you can't write in this way ना। example मैंने लिखा string buffer, ठीक है, मैंने लिखा string buffer and string buffer is equal to sb, या पहले एस बी, अच्छा एस पी दिस टाइम सपोज, एंड फिर मुझे लिखना है कंसीडर हेलो। कैन आई राइट इन दिस वे, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व, यू कांट क्रिएट अ लिटरल वे ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों क्लास में सेम है, रूल इज सेम, ओके। तो इस वे से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। चलो, तो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव अ स्ट्रिंग एंड हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। मतलब हमारा स्ट्रिंग क्या है, इट इज जस्ट अ वेरी सिंपल स्ट्रिंग जावा। तो अब रिवर्स कैसे करोगे, देखो मैंने लिखा सपोज स्ट्रिंग एंड दिस इज माय स्ट्रिंग s1, इट इज ऑल अबाउट जावा। रिवर्स करोगे मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स, है ना। तो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट कैसे करोगे, सी यू हैव टू कैलकुलेट ना 0 1 2 3। बट अगर मैंने लिखा ओके फाइन, तो मतलब मुझे इटरेशन स्टार्ट करना है उल्टा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, फिर एक एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाओ एंटिल 0, सारे वैल्यूज को बस क्या करो, उस इंडेक्स वैल्यू का कैरेक्टर एक्सेप्ट करो, तो यू विल एबल टू सी दैट, है ना। बट मैंने अगर ऐसे लिखा, जैसे देखो एग्जांपल फॉर लूप, ठीक है, इंटीजर इंटीजर आई शुड स्टार्ट विथ 3, ठीक है,
आई शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब तक ये ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं होता तब तक वो इटरेशन करेगा एंड क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। तो आई विल बी राइटिंग आई माइनस माइनस एंड क्या करना है मुझे एक एक इंडेक्स पे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसका कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, यू विल राइट इन दिस वे ना, s1 डॉट कैर एट, है ना, कैरेक्टर एट मेथड, एंड कहा से जो भी आई के पास है उसका कैरेक्टर रिटर्न करो। बट ये कैरेक्टर कहीं पे तो स्टोर करना है। अगेन हमें इस वे से रिक्वायर्ड है, ए के बाद वी के बाद ए, अगेन जे, इन दिस वे। तो आई विल बी टेकिंग वन एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। देखो सपोज s2, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, s2 इज इक्वल टू s2 प्लस दिस वन। अब क्या होगा, जो भी कैरेक्टर अवेलेबल है वो बस एक्सेप्ट होगा, ये ऐड होगा प्रीवियस कैरेक्टर में, एंड देन यू आर एबल टू सी दैट। मतलब देखो सपोज एग्जांपल आई का वैल्यू अभी है 3, ये रन कैसे होगा, देखो आई का वैल्यू है 3, ठीक है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, इट विल कम इनसाइड। क्या लिखा है आपने, s2 में क्या है, s2 में अभी के लिए एम्प्टी स्पेस है ना। अब आपने क्या किया है, s1 डॉट कैरेक्टर एट आई, तो s1 के थर्ड नंबर के इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, मर्ज होगा। तो s2 में क्या मिला, पहला लेटर ए मिला, यस और नो। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आई माइनस माइनस आई विल बी 2, 2 again greater than equal to 0, yes it is also true, it will come। what is the 2 second location पे कौन सा कैरेक्टर है, now it is v, तो previously s2 have a plus v। अब क्या होगा, a plus v में ऐड किया तो क्या मिलेगा आपको, av मिलेगा, yes और no, s2 become av। उसके बाद क्या, वन मोर टाइम आई माइनस माइनस आई विल बिकम 1, 1 अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस ग्रेटर देन है। तो अभी s2 में ऑलरेडी av है, av प्लस व्हाट इट विल ऐड, नेक्स्ट डे, तो यू विल एबल टू सी ava, है ना। नेक्स्ट टाइम आई माइनस माइनस आई बिकम 0, तो ग्रेटर देन नहीं बट इक्वल टू तो है, कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो फिर से क्या होगा, अब ऐड होगा avaj, एंड फाइनली आपको s2 का रिजल्ट मिलेगा रिवर्स वर्ड। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इफ टुमारो अगर मैंने लिखा है जावा सेलेनियम, ये पूरा वर्ड, तो क्या ये सेम लॉजिक रन होगा, सेम लॉजिक क्या रन होगा, व्हाट डू यू थिंक, No, no space. ओके व्हाई, Space. स्पेस, नो, सेम लॉजिक तो रन डेफिनेटली नहीं होगा। लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सी हमने अभी लिखा है जावा, एंड अगर आपने इस वे से स्टार्ट किया, सपोज एग्जांपल आई विल बी टेकिंग सम एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, दिस एग्जांपल स्ट्रिंग रिजल्ट, ओके, लेट मी टेक दिस स्ट्रिंग एज अ सिंपल स्पेस, या एस शुड बी कैपिटल, डन, ओके। अब मैं लिखती हूँ फॉर लूप, फॉर इंटीजर आई शुड स्टार्ट विथ 3, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि फाइंड दैट रिजल्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस, फिर मुझे ऐड क्या करना है, तो जो pl है, राइट, pl डॉट आई विल से कैरेक्टर एट आई, जो भी आई के पास है उसको ऐड करो, है ना, मैंने ऐसे लिखा सिंपल। एंड ऑब्वियसली अगर आप रिजल्ट वाले स्ट्रिंग को सिंपल प्रिंट करो, लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू सी द रिवर्स वन और नॉट। यस, कैन यू सी रिवर्स तो आ रहा है ना। बट सपोज मैंने चेंज किया, जावा सेलेनियम लिखा, अब भी तो होना चाहिए ना रिवर्स, आई शुड स्टार्ट विथ MUINE, ऐसे उल्टा आना चाहिए, राइट। बट देखो क्या होगा, अब इस केस में अगेन यू आर एबल टू सी ओनली दिस मच, व्हाई, बिकॉज फॉर लूप स्टार्ट कौन से लेटर से हो रहा है, 3, थर्ड नंबर के इंडेक्स से ही स्टार्ट हो रहा है ना हमेशा, यस और नो। हमें तो जैसे स्ट्रिंग चेंज होगा वी शुड गेट द आंसर, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कोड, ये स्टैटिक हुआ कि आपने बस एक ही टाइम यूज करने के लिए इसको यूज किया, कांस्टेंट के लिए नो, बट माय स्ट्रिंग कैन बी डायनामिक, टुडे आई एम गेटिंग जावा, टुमारो आई एम गेटिंग जावा सेलेनियम, देन अगेन नेक्स्ट डे आई विल बी गेटिंग समथिंग एल्स, इन दैट केस क्या करोगे, so we have to use here whatever the string will be there, okay, we have to calculate its length, and from that length
the length, I can say from that length we should start the reverse operation, guys. What do you think? जैसे एग्जाम्पल, अब इस केस में मैंने लिखा था स्ट्रिंग जावा, है ना, अब लिखा है जावा सेलेनियम, तो इसका लेंथ कितना होगा? देखो, सपोज लेट्स टॉक ऑन ओनली जावा, जावा का टोटल लेंथ कितना है? अगर आप लेंथ मेथड अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 4 कैरेक्टर। बट इंडेक्स वैल्यू जावा में स्टार्ट, मतलब स्ट्रिंग में स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। 0 1 2 एंड 3। अगर मैं लिखूंगी 4 से स्टार्ट करो तो 4 नंबर का तो इंडेक्स है ही नहीं, यस और नो? तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट ना लेंथ -1 करो, तो वी शुड स्टार्ट विथ लेंथ -1। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, टोटल जो भी होगा वो तो लेंथ मेथड से मिलेगा, तो लेंथ -1 करो एंड यू विल एबल टू गेट द आंसर। सी, तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट कैलकुलेशन करती हूँ, आई विल बी जस्ट राइटिंग, ओके फाइन। सबसे पहले पीएल का एक लेंथ कैप्चर करेंगे, ठीक है, एंड लेंथ -1 का जो भी रिजल्ट होगा, आई विल बी स्टोरिंग दिस रिजल्ट वेयर, आई विल बी स्टोरिंग दिस रिजल्ट, okay, left hand assignment must be there, yeah, I will be storing this result into integer, okay, I'm just writing here number। तो अब जो भी नंबर होगा ना उस नंबर से मुझे स्टार्ट करना है, वेरी सिंपल। मैंने क्या किया, p1 डॉट लेंथ, ये आपको इंटीजर रिटर्न करेगा, तो लेंथ -1 करो एंड इसको कोई नंबर में स्टोर करो एंड सेम नंबर से स्टार्ट करो। अब क्या होगा देखो, अब आपने जो भी डायनामिक स्ट्रिंग दिया है यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट। कैन यू सी? सेलेनियम जावा का रिजल्ट मिला, देखो ये प्रीवियस रिजल्ट प्रोग्रामिंग एंड जावा, एंड ये आपका है जावा सेलेनियम का रिवर्स। एवरीबॉडी, क्या ये लॉजिक क्लियर है? हाउ टू रिवर्स अ नंबर, हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, दिस लॉजिक्स यू नो एट लीस्ट यू शुड नो। ओके, एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट टिल दिस? कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करोगे? No, na, clear everybody? This time you can write any string and you will be able to see the same result. So this is all about a string class. Now already we have covered this browser assignment, guys. If you remember, मैंने ये explain किया था कि okay, take a browser name and जो भी name browser user enter करेगा, we should compare with string function whether it is equal, तो you should get the message, right? अब आप इसमें multiple program कर सकते हो, तो you can just go for that assignment. I guess what is the next assignment number? क्या है assignment number? It is 10, right? तो अभी कौन सा assignment करोगे? Do one thing. You can just ask a user, okay, to enter a environment name. Example, आप ऐसे भी कर सकते हो. So create some environments. This example, QA environment, okay, development environment. Let's say some stage environment, some production environment. Okay, in this way. So enter environment, okay, environment name. So suppose user ने लिखा I am from QA, तो okay fine, welcome to, आपको मैसेज आना चाहिए welcome to QA environment. Are you understanding this point? तो पहले मैसेज आना चाहिए enter environment name, जैसे आप लोग लिखोगे QA, ठीक है, कंपेयर करो इन दिस 4 एनवायरमेंट के साथ। तो QA ये आपको एक्सेप्ट करना है इन अ स्ट्रिंग, you have to compare with which string it is matching. So how you are going to write a logic? Tell me. जो भी string user लिखेगा, we should compare that this string is matching with which string. तो जो भी string से match होगा, and yes, please use string function. Equality के लिए कौन से function? Either आप लोग equals method और equals ignore case method, दोनों में से कोई भी एक method को use कर सकते हो। Everybody clear? दोनों में से कोई भी एक मेथड को यूज करो and then you are able to write this logic. So let's see who will complete this assignment number 10. Just take a screenshot. You of course how to accept the data from the user, you know that point, right? Use what? Scanner class. Scanner class से accept करो and फिर data जो भी user select करेगा, अगर QA है तो आना चाहिए welcome to QA, dev है तो आना चाहिए welcome to development environment, welcome to stage environment, welcome to production environment. Write this code. So complete this assignment number 10. Yes, clear everybody? So today we have completed string class. From tomorrow
I will be starting with object oriented programming principles. So please do not miss the session.